अरे बच्चों, आपका +1 क्लास में स्वागत है। आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो 7th यूनिट है इक्विलिब्रियम, उसमें जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक हैं रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, रिएक्शन कोएफिशिएंट Qc एंड गिब्स फ्री एनर्जी एंड ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। द फर्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, रिएक्शन कोएफिशिएंट Qc एंड गिब्स फ्री एनर्जी। जैसा कि आप जानते हैं, थर्मोडायनेमिकली द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द गिब्स एनर्जी चेंज डेल्टा G of the reaction at a particular temperature. So the change in Gibbs energy delta G is related to composition of the reaction mixture as change in Gibbs energy delta G is equal to change in standard Gibbs energy delta G naught plus RT log n Qc. So here R is the universal gas constant, T is the temperature in Kelvin, and Qc is the reaction coefficient of the reaction before attaining the equilibrium. So at equilibrium, when change in Gibbs energy delta G becomes 0, the reaction coefficient Qc becomes equal to equilibrium constant Kc. Hence equation 1 becomes change in Gibbs energy is equal to 0 at dynamic equilibrium is equal to change in standard Gibbs energy delta G naught plus RT log n equilibrium constant Kc. Upon rearranging this equation, we get change in standard Gibbs energy delta G naught is equal to minus RT log n equilibrium constant Kc. Or further, upon rearranging, we get log n Kc is equal to minus delta G naught over RT. So taking antilog of both sides, we get equilibrium constant Kc is equal to epsilon raised to power minus delta G naught over RT. Now, if standard Gibbs energy change delta G naught is less than 0, then the term minus delta G naught over RT is positive, and the exponential term, that is e raised to power minus delta G naught over RT, becomes greater than 1, making the equilibrium constant K greater than 1. This implies that the reaction in the forward direction is feasible and products predominate over reactants. Now second case, if the standard Gibbs energy change delta G naught is greater than 0, then the term minus delta G naught over RT is negative, and the exponential term e raised to power minus delta G naught over RT becomes less than 1, and the equilibrium constant K becomes less than 1. This implies that the reaction in the forward direction is non-feasible and reactants predominate over products. Next topic is factors affecting the state of equilibrium, Le Chatelier's principle. Le Chatelier's principle. If a system in equilibrium is subjected to a change in any of the factors that determine the equilibrium conditions of a system, then the equilibrium will shift in the direction so as to reduce or counteract the effect of the change. मान लो कोई रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो क्लोज्ड वेसल के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है, और कुछ समय के बाद सिस्टम जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है। तो जैसा कि आपको पता है कि एट डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और जो भी आपके सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, कलर एट्सेट्रा, उन सभी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। अब मान लो आप इनमें से किसी एक प्रॉपर्टी की वैल्यू को चेंज करते हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेट, देन द इक्विलिब्रियम will shift in the direction so as to reduce or to counteract the effect of the change. So this is called the Le Chatelier's principle. Now let us consider the first case.
that is effect of change of concentration. When the equilibrium is disturbed by addition or removal of any reactant or product, then the equilibrium shifts in the direction to counteract the effect of change in concentration of reactant or product. To understand the effect of concentration on equilibrium, consider a reversible reaction in which 1 mole of hydrogen gas reactant react with 1 mole of iodine gas reactant in the forward direction to produce 2 moles of hydrogen iodide gas as product, and 2 moles of hydrogen iodide gas as product decompose in the backward direction to give back the reactants, that is 1 mole of hydrogen gas and 1 mole of iodine gas. So at equilibrium at 700 Kelvin, the equilibrium constant Kc is equal to, it is the ratio between the product of the concentrations of the products to the product of the concentrations of the reactants, in which each concentration term raised to power equal to its stoichiometric coefficient given in the balanced chemical equation. Hence, here at equilibrium, the value of Kc is equal to concentration of product hydrogen iodide in mole per liter raised to power 2, which is equal to its stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation, over concentration of reactant hydrogen gas in mole per liter raised to power 1. So power 1 is the stoichiometric coefficient of hydrogen gas in the balanced chemical equation into concentration of reactant iodine gas in mole per liter raised to power 1. So here power 1 is equal to stoichiometric coefficient of reactant iodine gas in the balanced chemical equation. Let us plot a graph between the time along x-axis and molar concentration of the reactants and products along y-axis. So at equilibrium, the molar concentrations of reactants and products become constant. यानी कि इस केस में आपके रिएक्टेंट से हाइड्रोजन और आयोडीन और प्रोडक्ट है हाइड्रोजन आयोडाइड, तो इन सब की जो मोलर कंसंट्रेशंस हैं वो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है रिएक्शन मिक्सचर में. अब मान लो आप रिएक्शन मिक्सचर में कोई एक रिएक्टेंट यानी कि या तो हाइड्रोजन या आयोडीन या दोनों ही रिएक्टेंट्स जो है वो ऐड कर देते हैं. मान लो आप यहाँ पर रिएक्टेंट हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी. यानी कि जितनी कंसंट्रेशन जो है एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट्स की होनी चाहिए उससे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू एडिशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम. तो अब टू अनडू दिस इफेक्ट, इस इफेक्ट को काउंटर एक्ट करने के लिए जो रिएक्टेंट है वो आपस में रिएक्ट करेंगे ताकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाए, जो इंक्रीज की थी आपने वो डिक्रीज हो जाए, और साइमल्टेनियसली उससे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा. यानी इन अदर वर्ड द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. अगर आप मान लो एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो उसको अनडू करने के लिए, उसको काउंटर एक्ट करने के लिए आपका जो इक्विलिब्रियम है दैट विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सिमिलरली अगर आप मान लो एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, राइट हैंड साइड को आपका प्रोडक्ट है इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. मान लो आप एट इक्विलिब्रियम जो है रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्शन मिक्सचर में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो इस इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को काउंटरएक्ट करने के लिए इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट करेगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, ताकि जो आपने प्रोडक्ट ऐड किया है जिससे उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई वो डिकम्पोज हो जाए और रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाए. इससे क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, रिएक्टेंट की इंक्रीज हो जाएगी,
और न्यू इक्विलिब्रियम जो है वो री एस्टेब्लिश हो जाएगा। अगर आप इन टर्म ऑफ रिएक्शन कोएफिशिएंट इसको एक्सप्लेन करना चाहे तो जैसे कि आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो यानी कि ये जो आपके इक्विलिब्रियम लॉ एक्सप्रेशन है इसमें न्यूमरेटर में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस हैं और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। तो मान लो अब आप डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट ऐड कर देते हैं, तो रिएक्टेंट ऐड करने से डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। उससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो है दैट बिकम्स रिएक्शन कोएफिशिएंट Qc whose value is less than the equilibrium constant Kc due to increase in the concentration of the reactants। तो अब इस इफेक्ट को अनडू करने के लिए रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में और प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, प्रोडक्ट की इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। यानी कि Qc की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और एट डायनामिक इक्विलिब्रियम Qc बिकम्स इक्वल टू Kc। यानी कि इन अदर वर्ड वी कैन से on adding the reactants in the reaction mixture at equilibrium, the equilibrium will shift in the फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली मान लो अगर आप एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड कर देते हैं, तो प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड करने से अब न्यूमरेटर में जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc बिकम्स Qc whose value will be greater than the value of equilibrium constant Kc। अब इस इफेक्ट को काउंटरएक्ट करने के लिए प्रोडक्ट जो हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे ताकि न्यूमरेटर में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाए और साइमल्टेनियसली जब प्रोडक्ट डिकम्पोज होंगे तो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे और इस तरह से डिनोमिनेटर में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाए। यानी कि इन अदर वर्ड Qc जो है उसकी वैल्यू बैकवर्ड डायरेक्शन में जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा यानी प्रोडक्ट डिकम्पोज होगा तो Qc की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी क्योंकि प्रोडक्ट डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे, न्यूमरेटर में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे तो डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से रिएक्शन कोएफिशिएंट Qc की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी एंड एट डायनामिक इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ रिएक्शन कोएफिशिएंट Qc बिकम्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। Hence on adding the product in the reaction mixture the equilibrium will shift in the backward direction. The second case is the effect of change of temperature. If the temperature of the system at equilibrium is increased, यानी कि heat supplied to the system from the surrounding, the equilibrium will shift in the direction in which the added heat is absorbed. In other words, the equilibrium will shift in the direction of endothermic reaction with increase in temperature. Alternatively, the decrease in temperature will shift the equilibrium towards the direction in which the heat is produced and therefore will favor exothermic reaction. To understand the effect of change of temperature, consider an equilibrium for the following reversible reaction in which 2 moles of nitrogen dioxide gas, which is red-brown colored gas, react in the forward direction to produce 1 mole of dinitrogen tetroxide gas, which is colorless gas, with the evolution of heat energy. And
1 mole of dinitrogen tetroxide gas with the absorption of heat energy decompose in the backward direction to give back the 2 moles of nitrogen dioxide gas which is red brown colored. So in this reversible reaction in the forward direction is an exothermic reaction because heat energy is evolved in the forward direction. And this reversible reaction in the backward direction is an endothermic because with the absorption of heat energy डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड गैस जो है वो दैट डिकम्पोज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन टू गिव बैक द रिएक्टेंट्स दैट इज 2 moles ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस. तो फॉर एग्जांपल मान लो हम 2 फ्लास्क लेते हैं और दोनों फ्लास्क जो हैं वो सेम वॉल्यूम की है और दोनों फ्लास्क में सेम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं, सील्ड कर देते हैं दोनों फ्लास्क को और दोनों फ्लास्क को रूम टेम्परेचर के वाटर बाथ में इंट्रोड्यूस कर देते हैं. तो क्या होगा कि कुछ समय के बाद जो है दोनों फ्लास्क में अब रिवर्सिबल रिएक्शन जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड गैस के बीच में एस्टेब्लिश हो जाएगा और इन दोनों फ्लास्क का कलर जो है वो सेम इंटेंसिटी का हो जाएगा, यानी कि लाइट ब्राउन कलर हो जाएगा. तो इक्विलिब्रियम जो है इन दोनों फ्लास्क में एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा. अब मान लो आप फ्लास्क 1 को जो है वो आइस कोल्ड वाटर में ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो आइस कोल्ड वाटर में फ्लास्क 1 को ट्रांसफ़र करने पर क्या हो जाता है, अब फ्लास्क के अंदर टेम्परेचर था 298 केल्विन, यानी कि सिस्टम का टेम्परेचर जो है 298 केल्विन है, जबकि सराउंडिंग जो आइस कोल्ड वाटर है उसका टेम्परेचर लोअर है 273 केल्विन. इस वजह से हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, यानी सिस्टम हीट एनर्जी जो है वो लूज कर रहा है. तो टू undo or to counteract the effect of change of temperature, the equilibrium will shift in that direction in which the heat energy is produced or heat energy is evolved. Thus the equilibrium in flask 1 in ice cold water will shift towards the forward direction, यानी कि ये फेवर करेगा लो टेम्परेचर जो है दैट फेवर्स द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि जो इसके अंदर NO2 गैस मॉलिक्यूल्स थे वो डाइमराइज हो जाएंगे इनटू डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड गैस में और इस तरह से जो लाइट ब्राउन कलर था वो फेड हो जाएगा और ये फ्लास्क 1 क्या हो जाएगी, कलरलेस हो जाएगी. सिमिलरली मान लो अब आप फ्लास्क 2 को जिसके अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है एट 298 केल्विन इन वाटर बाथ, तो इसको आप ट्रांसफ़र कर देते हैं हॉट वाटर में जिसका हाई टेम्परेचर है 363 केल्विन. अब सराउंडिंग में हॉट वाटर का टेम्परेचर जो हायर है 363 केल्विन है और सिस्टम यानी कि जो फ्लास्क है जिसके अंदर इक्विलिब्रियम मिक्सचर है आपका, उसका टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर है 298 केल्विन. तो इस वजह से हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ट्रांसफ़र होगी, यानी कि सराउंडिंग से हॉट वाटर से हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी फ्लास्क के अंदर जो आपका रिएक्शन मिक्सचर है जिसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है. अब यहाँ पर ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, तो हीट एनर्जी की वजह से क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और टू अनडू द इफेक्ट ऑफ गेन ऑफ हीट एनर्जी बाय द सिस्टम जो है इसका इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड. अगर आप रिवर्सिबल रिएक्शन को देखें तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि इट फेवर्स द हाई टेम्परेचर फेवर्स द एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. और जो फ्लास्क 2 के अंदर आपकी डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड गैस थी, कलरलेस गैस, वो बाय एब्जॉर्बिंग द हीट एनर्जी जो सराउंडिंग से सिस्टम ने गेन की है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में डिकम्पोज हो जाएगी इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में
और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का कलर डार्क ब्राउन होता है। इस वजह से इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इफ द रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट्स और बोथ आर इन गैस फेज, the pressure has the effect on the equilibrium. According to Lee Chatelier's principle, increase of pressure on a system at equilibrium will shift the equilibrium in the direction in which pressure is reduced. To understand the effect of change of pressure on equilibrium, तो सबसे पहले कंडीशन है कि हमारा जो इक्विलिब्रियम में सिस्टम है वो गैस फेज में होना चाहिए, और गैस फेज में होने के लिए या तो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स या दोनों ही रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स गैस फेज में होने चाहिए। अब मान लो रिएक्शन मिक्सचर में गैसेस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, देन वी कैन यूज द आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT, और फ्रॉम दिस इक्वेशन अपॉन रीअरेंजिंग वी गेट दैट pressure of the gas is directly proportional to number of moles of that gas present in the reaction mixture. दूसरा, pressure is inversely proportional to volume of the reaction mixture. अब मान लो आपकी closed vessel है at a particular temperature, इस closed vessel के अंदर जो है वो reversible reaction takes place कर रहा है, जिसमें 2 moles of nitrogen dioxide gas, जो brown dots शो करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल्स, ये डाइमराइज हो जाते हैं इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड गैस। जो लाइट ब्राउन सर्कल है लार्ज, वो शो करता है मॉलिक्यूल ऑफ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड गैस। एंड नाउ 1 मोल ऑफ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड गैस जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में डिकम्पोज हो रही है इनटू 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो मान लो ये इक्विलिब्रियम जो है ये एस्टेब्लिश्ड है एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इन ए क्लोज्ड वेसल। अब मान लो आप एक क्या करते हैं, इसकी कंप्रेशन करते हैं। तो कंप्रेशन यानी कि बाय इंक्रीजिंग द वेट ऑन द पिस्टन द गैस गेट कंप्रेस्ड, और इस कंप्रेशन से क्या हो जाएगा, जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो अब टू अंडू दिस इफेक्ट इन द चेंज ऑफ प्रेशर, अब इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएं, डिक्रीज हो जाएं। तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं आपके, अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन को प्रोसीड करता है, यानी कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन in which 2 moles of nitrogen dioxide gas dimerize to produce 1 mole of dinitrogen tetroxide gas. अब नाउ सेकंड केस, मान लो आप क्या करते हैं कि जो आपका सिस्टम गैस फेज में इक्विलिब्रियम में है उसके पिस्टन से वेट को हटा देते हैं। वेट हटाने का मतलब है कि आप प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं। तो जब प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो एज प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर जो है आपका जो इक्विलिब्रियम स्टेट में है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब वॉल्यूम जब इंक्रीज हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस इन द रिएक्शन मिक्सचर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेज इन रिएक्शन मिक्सचर्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएंगे। तो इस डिक्रीज इन प्रेशर को काउंटरैक्ट करने के लिए इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेज इन द रिएक्शन मिक्सचर इंक्रीजेस। तो अगर आप रिवर्सिबल रिएक्शन देखते हैं तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स of gases in the reaction mixture increases in the backward direction in which 1 mole of dinitrogen tetroxide gas decompose in the backward direction to produce 2 moles of nitrogen dioxide gas. Hence, upon expansion of the equilibrium state of the system, the equilibrium will shift in that direction in which the number of moles of gases in the reaction mixture increases. Hence here in this case upon expansion the equilibrium will shift in the backward direction.
If there is no change in the number of moles of gaseous reactants and products, the pressure will have no effect on the equilibrium. For example, reversible reaction in which 1 mole of hydrogen gas react with 1 mole of iodine gas in the forward direction to produce 2 moles of hydrogen iodide gas and 2 moles of hydrogen iodide gas in the backward direction give back the reactants. Similarly, the second reversible reaction in which 1 mole of carbon dioxide gas react with 1 mole of hydrogen gas in the forward direction to produce 1 mole of carbon monoxide gas and 1 mole of water vapors, and the products in the backward direction give back the reactants. So in both cases we see that the number of moles of reactants is equal to number of moles of products. As in such cases the change in pressure does not affect the equilibrium. In case of heterogeneous equilibrium, the effect of pressure changes on solids and liquids can be ignored because the volume and concentration of a solid or liquid is nearly independent of pressure. For example, in the reversible reaction in which 1 mole of solid carbon react with 1 mole of carbon dioxide gas in the forward direction to produce 2 moles of carbon monoxide gas and carbon monoxide gas react in the backward direction to give back the reactants. तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो अगर सब्सटेंसेस प्योर सॉलिड या लिक्विड में होते हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स को इग्नोर कर देते हैं. तो यहाँ पर रिएक्टेंट में 1 मोल है और प्रोडक्ट्स में 2 मोल हैं. अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है ऐसे केस में और आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इन विच द नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेस. तो यहाँ पर देखिए इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज. कंसीडर ए रिवर्सिबल रिएक्शन इन गैस फेज इज टेकिंग प्लेस inside a closed vessel at a particular temperature. So if we increase the volume of the system, the number of moles of the gases in the reaction mixture क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे. So to undo or counteract the effect of decrease in number of moles, the equilibrium will shift in the direction in which the number of moles increases. So here in this reversible reaction the equilibrium will shift in the backward direction. Similarly, if we decrease the volume by applying the pressure over the reaction mixture of gases, the number of moles increases due to decrease in volume. So to undo this effect of change of volume, the equilibrium will shift in the direction in which the number of moles of the gases in the reaction mixture decreases. Hence equilibrium will shift in the forward direction in this reversible reaction. Effect of catalyst. As we know, catalyst favors the rate of forward and backward reactions equally by lowering the activation energy of the reaction. Thus it simply helps to achieve the equilibrium quickly. Hence catalyst does not shift the equilibrium in any direction. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस. तो फर्स्ट केस में एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम और सेकंड केस है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. मान लो कोई क्लोज्ड वेसल है और उसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो प्रोसीड कर रहा है और इक्विलिब्रियम इसमें एग्जिस्ट कर रहा है. अब आप अगर पंप के द्वारा इसके अंदर हीलियम गैस जो इनर्ट गैस है उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम. कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब कि पिस्टन आप सील्ड कर देते हैं ताकि पिस्टन अप डाउन मूव ना कर सके. तो क्या होगा, जैसे आप हीलियम गैस प्रेशर के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे लेकिन वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगा. यानी कि इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज. द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम डज नॉट shift the equilibrium in any direction. Now in second case, addition of inert gas helium at constant pressure. So there is frictionless piston. तो जैसे आप हीलियम इनर्ट गैस प्रेशर के साथ जो है इंट्रोड्यूस कर देते हैं सिलेंडर के अंदर, तो क्या होगा कि piston moves upward and volume of the reaction mixture increases. और वॉल्यूम इंक्रीज होने से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस इन द रिएक्शन मिक्सचर डिक्रीजेस. सो टू अनडू और काउंटरैक्ट दिस इफेक्ट द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन
in which the number of moles increases. So here in this reversible reaction, the equilibrium will shift in the backward direction. Thank you. धन्यवाद.